Hello students, today I will discuss of the third parts of the carboxylic acid. Carboxylic acid. Carboxylic acid. Okay. Now carboxylic acid are the compound containing the carboxylic carboxylic functional group. The carboxylic functional group attains for the one carbon atom has a double bond presence of the oxygen and OH. This is group functional group of the carboxylic functional group. ये carboxylic functional group है. Okay, functional group carboxylic COOH और इसको करके ऐसे सिंपल लिख देते हैं COOH. This is the functional group of the carboxylic acid. There are the two types. Number one, if the R containing of the C double bond OH, it is aliphatic carboxylic acid. This is aliphatic carboxylic acid. Aliphatic carboxylic acid. Or now R replace AR containing of the COOH group R carboxylic functional group attachment. It is called the aryl carboxylic acid. Aryl carboxylic acid. Okay, identify of the COOH group functional group attachments of the carboxylic group. Any aliphatic or aromatic बोल भी सकते हैं और aryl because the AR representative of the aryl plus the aromatic carboxylic acid. This is aryl. These are aromatic carboxylic acid and aliphatic carboxylic acid. Now aryl, aliphatic or aromatic carboxylic acid attachments of the carboxylic function. So it is called the carboxylic acid. Okay, students. Now types of the carboxylic acid: aromatic and aliphatic. Identify of the carboxylic acid to containing R and AR. Alkyl group or aryl group containing of the COOH group or carboxylic group. It's called carboxylic acid. Okay, students. It's called carboxylic acid. Aliphatic and aromatic carboxylic acid are classified as monocarboxylic. Aliphatic or aromatic carboxylic acid are classified monocarboxylic acid, mono, di, tri, poly. Okay, dicarboxylic acid, tricarboxylic acid, and polycarboxylic acid. Polycarboxylic acid. Okay, students. वन क्लासिफाइड पढ़ते हैं. सबसे पहले आपको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. मोनो वन carboxylic functional group attachments of the chains are monocarboxylic acid. Two carboxylic functional group attachments of the aliphatic or aromatic called di. Three presence of the COH group called tricarboxylic, and three or more containing of the COH group, it is called the polycarboxylic acid. One examples अगर सिंपल देखना चाहें तो फॉर्मिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, टेरिक एसिड. पॉलीकार्ब में कोई भी हो सकता है आपका, जिसमें पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी आप ले सकते हैं जिसमें कंपोनेंट्स अटैचमेंट्स ऑफ द सिंगल बॉन्ड है तो सारे कंप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, एक एक कंपाउंड्स
हम ले रहे हैं, जैसे नंबर 1 में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का आप नेम भी देखेंगे और आईयूपीएसी नेम में नंबर ए मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। If the one COH or carboxylic group present in the chain are aromatic components, it's called the monocarboxylic acid. The common name or trivial name of carboxylic acid based upon source of origin. The common name, अगर आप ट्राइवियल नेम, ठीक है, तो ट्राइवियल नेम में क्या होता है बेटा, ट्राइवियल नेम किस पर डिपेंड करता है, सोर्स पर डिपेंड करता है, जो उसका सोर्स होगा, ठीक है। Sources, for example, formic acid are sources for the formica, okay, HCOOH। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, 1 हाइड्रोजन ग्रुप है, तो फर्स्ट मेंबर है ये आपका, ठीक है, फर्स्ट मेंबर है। इसका जो सोर्स है वो क्या है, बिल्कुल आप जान रहे हैं कि लैटिन वर्ड में फॉर्मिका मींस ईटी, ये एंड, ठीक है, फॉर्मिका इसका लैटिन नेम जो है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, लैटिन नेम में इसे फॉर्मिका, फॉर्मिका इज इक्वल टू एंड होती है, जो रेड एंड होती है, रेड एंड जो रेड वाली आपकी चीटियां होती है, ठीक है, तो रेड एंड्स होती है, जिसका सोर्स जो है एंड है, इसलिए इसका जो नेम पड़ गया ट्राइवियल सिस्टम में सोर्स पर डिपेंड करता है, ये लैटिन वर्ड है फॉर्मिका मींस एंड, ओके। तो ना सोर्स ऑफ, I mean the common or trivial names are carboxylic acid are based on their source. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिक एसिड, नेक्स्ट ले लेते हैं एसिटिक एसिड, जनरल आप इसको जानते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से विनेगर है इसका, क्या ट्राइवियल नेम, ये भी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड विनेगर का लैटिन वर्ड क्या हो जाता है, एक्सटम, एसिटियम, एक्टम्स लैटिन वर्ड है, एक्टम्स मीन आपको मालूम है विनेगर भी होता है, जिसका मीन्स क्या हो जाता है, विनेगर, ठीक है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। ये सारे जो हो जाते हैं वो सोर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे ब्यूटेरिक एसिड, तो ब्यूटेरिक एसिड में हो जाएगा 4 कार्बन हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 COOH, 1 2 3 4 है ब्यूटेरिक एसिड, इसका जनरल ट्राइवियल नेम है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक, आप नाम नेम देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, ठीक है। ब्यूटेरिक एसिड ये भी लैटिन वर्ड से है, इसका लैटिन नेम जो है वो आपका ब्यूटेरिक एसिड व बटर, ठीक है, ये ब्यूटेरिक एसिड लैटिन ब्यूटम, इज इक्वल टू होता है बटर, ठीक है, इज इक्वल टू बटर। ये सारे क्या है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ऑफ द कंटेन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, नेम्स ऑफ द लैटिन वर्ड्स और जनरल नेम्स ऑफ द विनेगर, फॉर्मिका, ब्यूटेरिक एसिड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स ऑफ द एक्टम एंड बटर। यस स्टूडेंट, कितने बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी, सिस्टम ऑफ इन द कॉमन सिस्टम ऑफ पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये आपका ट्राइवियल हो गया, अगर कॉमन सिस्टम में आप देखते हैं तो कॉमन सिस्टम ऑफ द नेम ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। पोजीशन जो होता है सब्स्टिट्यूएंट्स का, पोजीशन और द सब्स्टिट्यूएंट्स,
ठीक है। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स डिपेंड्स अपॉन द कॉमन नेम्स लाइक अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, ग्रीक ग्रीक लेटर्स में या ग्रीक वर्ड्स में इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक लेटर्स का आपने देखा होगा, ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा थीटा। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ग्रीक लेटर्स होते हैं जिसको हम कॉमन नेम में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल में कॉमन नेम से 1 2 3 कोई भी कार्बन लेके आप यहाँ पर 3 है तो 3 ले लीजिए, 4 है तो 4 कोई भी। अब COH तो पहले तो आइडेंटिफाई हो गया, इट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज़ द चेन प्रेजेंट इन द COH ग्रुप। तो फर्स्ट कार्बन अटैचमेंट्स ऑफ द CO which are alpha, second carbon attachments are the beta एंड थर्ड कार्बन अपॉन गामा। अगर एव कार्बन होता तो यहाँ पर हो जाता आपका बीटा हो जाता। ठीक है, तो ये जनरली हम जब कॉमन नेम्स लिखेंगे तो पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स पर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट कर देते हैं। अब जैसे एग्जांपल में आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही वाला इसी में है और आपने इसी में हमने सोर्स में लगा दिया, यहाँ पर बेटा CH3 लगा दिया, नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ कहीं भी, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH होगा, बैलेंस आपकी हाइड्रोजन की आप कर लिया करिए। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड देखिए, पहला तो हमेशा क्या होगा, अल्फा होगा, और अल्फा में ही क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अल्फा मेथिल 3 कार्बन है, प्रोपियोनिक एसिड, तो अल्फा हो जाएगा मेथिल, अल्फा में क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल मेथ एक प्रोपियोनिक एसिड। या ठीक है, यहाँ पर भी प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, प्रोपियोनिक एसिड। तो इस प्रकार इस कंडीशन में जब भी कॉमन नेम्स लिखते हैं तो अल्फा बीटा गामा का हम ये कर देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई और कार्बन चेन लंबी है 1 2 3 4 COH। ठीक है, इस कंडीशन में आ रहा है, मान लीजिए अब हमारे सेकंड वाले में इधर लग गया CH3, कुछ भी लगा है, तो अब ये तो अल्फा का बेटा, ये क्या है बीटा, और ये ऑलरेडी अभी किसी मतलब ही नहीं। तो बीटा कंडीशन में क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो बीटा कंडीशन में मेथिल लगा हुआ है, तो बीटा मेथिल मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेरिक है तो ब्यूटेरिक कर देंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये बीटा पे लगा हुआ है, तो बीटा बीटा में क्या लगा हुआ है, मेथिल, इसके साथ लगा हुआ है ब्यूटेरिक एसिड, तो ये यहाँ पर ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अगर इस प्रकार CH3 भी है तो आइसो कंडीशन भी आता है, 1 कार्बन अटैचमेंट्स ऑफ द 2 मेथिल ग्रुप, इट इज कॉल्ड द आइसो कंपोनेंट, तो इसका कॉमन नेम हो जाता है ऑर्सो वैलेरिक एसिड। तो इस कंडीशन में अगर रहता है तो ये हाइड्रोजन आप अपने आप भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये अल्फा ये बीटा है, बीटा मेथिल substituents of the position contains of the common names alpha beta gamma or theta। ओके, मेन नॉमेनक्लेचर जो आपको पढ़ना है वो IUPAC, जिसमें आपने ट्राइवियल सिस्टम देख लिया, ट्राइवियल सिस्टम डिपेंड्स करता है एज सोर्स पर, एंड कॉमन सिस्टम में डिपेंड करता है पोजीशन एंड सब्स्टिट्यूएंट्स पर, जो भी उसके सब्स्टिट्यूएंट्स और पोजीशन पे जुड़ता है उसका नेम हम लिख देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट the important system of the organic chemistry, IUPAC system, according to IUPAC ओके, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट। ओके, इसका नाम सब लोग जान रहे हैं। द नेम ऑफ द एसिड डिवाइडेड फ्रॉम corresponding by replacing terminal E, the alphabetically depends upon all the alkane are replacing of E and add of the oic acid। ओके, बिकॉज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केवल अभी आपको ओइक एसिड, ओके, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो डाई ओइक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक पढ़ेंगे तो ट्राई ओइक एसिड। तो मोनोकार्बोक्सिलिक में चल रहा है जिसके एल्केन से इसके ई क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ओइक एसिड ऐड हो जाएगा। ये तो सेम रहेगा, एल्केन ई हट जाएगा, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट्स,
एकदम सिंपल है आपका। द नेम ऑफ द एसिड डिराइव्ड फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एक्स्ट्रा बाय रिप्लेसिंग टर्मिनल ई and adding of the oic acid. So it is called alkane convert of the alkanoic acid. Is it named as the IUPAC? ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, एक सिंपल सा चाहे चार्ट बना लीजिए जैसे आपके बुक में बना हुआ है। उस चार्ट में आप यहाँ पर दोनों नेम लिखते जाइए, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम। ठीक है, ये कंपाउंड लिख दीजिए, यहाँ पर ये कंपाउंड हो जाएगा आपका, और यहाँ पर कॉमन नेम आप लिख दीजिएगा, और ये आपका हो जाएगा आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नेम। अब एक एक करके चलते हैं, हम आपको बताते चलेंगे और आप ऑलरेडी कर लीजिएगा। ठीक है, पहले कंपाउंड में अगर वन सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम है तो आपके पास क्या है, HCOOH है। ठीक है, पहला ऑलरेडी क्या है, फॉर्मिक एसिड है, इसको आप जानते हैं, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम सबको मालूम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर्मिक एसिड में कार्बन देखिए कितना है, 1 है, तो यहाँ पर एल्केन की जगह पर क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथेन से ई हट जाएगा, ओइक हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। ठीक है, देखिए मेथेन होता है यहाँ पर ई रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर ओइक हो जाएगा, एसिड जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड आईयूपीएसी में। ओके स्टूडेंट, एकदम सिंपल है। आप इसमें कुछ कॉमन नेम्स है। अब सेकंड वाला देखेंगे, टू कार्बन एटम में तो आपको मालूम है कि एसिटिक एसिड होता है COOH। ठीक है, COOH, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइवियल में आ जाएगा तो विनेगर हो जाएगा। ठीक है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और विनेगर। ओके, अब एसिटिक एसिड में कार्बन कितना है बेटा, देखो 2। Okay, the carboxylic acid present in the carbon or attachments of the carbon-carbon bond should include of the carbon atom. Okay, no one carbon atom is going, two carbon atom attachments of the acetic acid. So it is called the ethane. Ethane replacing by E and adding by oic acid, ethanoic acid. यहाँ पर हो जाएगा ethanoic acid. आप लोग सब लोग लगातार करते जाइए। एथेनो, एथेन होता यहाँ पर हो जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और आगे आप ले लेंगे 4 कार्बन बोल लिए, मेथिलेट प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा, ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। तो जर्नल ये लेते जाइए जो इंपॉर्टेंट है। वेलरिक एसिड एक होता है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, 1 2 3 4। यहाँ पर COOH, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, CS2 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 CS3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये अपने आप हो जाएगा। वेलरिक एसिड इसको बोलते हैं जर्नल नेम में वेलरिक एसिड। ओके, पूछ लेते हैं कभी कभी जर्नल नेम भी, तो अकॉर्डिंग टू सोर्स पर डिपेंड करता है ये। ठीक है, वेलरिक एसिड। अब यहाँ पर कार्बन कितना 1 2 3 4 5, तो पेंट होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा पेंटोनिक एसिड, पेंटेन होना चाहिए ये, और पेंटोइक एसिड हो जाएगा, पेंटेन और ओइक हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ये तो सारे बहुत सिंपल नेम वाले थे आपके। ठीक है, अब मैं इसमें टफ 2-3 आपको बता दे रहा हूँ, उसको आप लोग कर लीजिएगा। वेलरिक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, पेंटेनोइक, एथेनोइक, मेथेनोइक, कार्बन प्रेजेंस ऑफ द मेथ, प्रोब्यूटेंट, हेक्सेनोइक। ठीक है, जर्नल एक कंपाउंड है आपका जिसमें COOH जुड़ा रहता है, आपका COOH, एक H ऊपर होता है, आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। CH3 देखिए, ध्यान से देखिएगा, CH3 है। ठीक है, इसमें COH लगा है, चाहे इधर CH3 आप लगा दीजिए और इसको OH कर दीजिए। ठीक है, इसको बहुत बार आप आइसोमेरिज्म में भी बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। आइसोमेरिज्म में one carbon attachments of the different group present of the chiral atom, so it is called the carbon chiral atom. It is lactic acid, the journal name आप आईयूपीएसी नेम में आपको अभी बता रहा हूं मैं, ये क्या है, जो कॉमन नेम में लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। बहुत पूछता है जब COH ग्रुप प्रेजेंट है तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में ये भी आएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी, 1 और 2 में क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी
ओके देखिए 1 2 फर्स्ट कार्बन उसी को देंगे जहां पर CO ग्रुप 2 में क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब में प्रो 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक एसिड होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड प्रोपियोनिक प्रोपेन लिखेंगे ओइक एसिड लिखेंगे ठीक है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। जनरल नेम पूछता है लैक्टिक एसिड का बहुत जगह यूज है इसको आप देख लेंगे अच्छे से हो जाएगा ठीक है। देखिए आपका CH2 डबल बॉन्ड ये भी बहुत जनरल में पूछा जाता है CH2 डबल बॉन्ड ऊपर ही लगा दीजिए CH देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCOOH ठीक है। एक्रेलिक एसिड बहुत ज्यादा पूछ लेता है ये जनरल नेम भी आप कॉमन नेम भी पढ़ते चले एक्रेलिक एसिड ठीक है। अब प्रोप टू इनोइक एसिड में थे प्रोप है प्रोप में 2 इनोइक लगा है यहाँ पर पूरा जो आयु एसिड नाम हो जाएगा प्रोप 2 इन होना चाहिए। देखिए प्रोपेन होता है तो प्रोप ले लेंगे 2 में क्या लगा इन लगा हुआ है क्या लगा इन लगा हुआ है तो इनोइक ई यानी ई लिखते हैं पूरा और ई रिप्लेस कर देंगे ई रिप्लेस करने के बाद ओइक एसिड जोड़ देंगे ठीक है। देखिए प्रोपेन बोले थे प्रोपेन टू इन तो प्रोप टू इन का ई रिप्लेस करके ओइक जोड़ देंगे तो प्रोप टू इनोइक एसिड हो जाएगा ये ओनली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अभी हम आपको बता रहे हैं ठीक है। इसको कर लीजिए सब लोग हो गया वेरी गुड। अब एक हम आपको एरोमेटिक वाला बता दे रहे हैं C6H5 का इसमें जो ठीक है तो इसी के नीचे कर लीजिए चाहे ऐसे लिखिए C6H5 ठीक है। यहाँ पर ये एरोमेटिक रिंग लग गई CH ऊपर लगा दीजिए CH डबल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पर जो कंडीशन आएगी अब अभी तो यहाँ पर COH नहीं है एक COH लगा देंगे किसका मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक है C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOOH ठीक है। इसको सिनेमिक एसिड बोलते हैं बहुत पूछा जाता है सिनेमिक एसिड सिनेमिक एसिड सिनेमिक एसिड ओके सिनेमिक एसिड C6H5 CH डबल बॉन्ड CHCOOH तो 3 फेनिल प्रोप 1 2 3 यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 में बेटा क्या लगा हुआ है आप देखिए फेनिल ग्रुप लगा हुआ है तो 3 फेनिल जो भी लगा हुआ है उसको पहले लिखेंगे 3 में 1 2 3 में क्या लगा हुआ है फेनिल फेनिल के साथ प्रोप टू इन में प्रोप में यानी प्रोपेन के साथ इन लगा हुआ है तो उसी तरह हो जाएगा प्रोप ठीक है। अब प्रोपीन होता है तो प्रोपीन यहाँ पर ई यानी ई और उसके बाद एक ई न लिख के ई की जगह पर ओइक एसिड लिख देते हैं तो प्रोइनोइक एसिड ठीक है 3 फेनिल प्रोइनोइक एसिड। इसका जर्नल नेम भी आपका आ जाता है जैसे आप अभी प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी करेंगे तो उसमें हो जाएगा ठीक है स्टूडेंट। The simplest aromatic carboxylic acid present in the any compounds like the benzoic acid. Okay, the simplest benzoic acid present of the aromatic condition. For example, one substituents of the carboxylic acid COOH. Okay, COH present of the C6 or इसी को हम लिख सकते हैं C6H5COOH. तो just like the aromatic containing are called the benzoic acid. बेंजोइक एसिड बेंजीन होता है बेंजीन ई हट जाएगा वहां पर और यहां पर ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड ठीक है। इसे आईयूपीएसी में एक नेम से और जानते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इस कंडीशन में कोई आ जाता है तो एक नया आईयूपीएसी नेम आ जाता है
इसे हम बोल सकते हैं बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम बहुत अच्छे से अभी आपको समझाएंगे, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें कंटेनिंग में बहुत कंपाउंड्स ऐसे आ जाते हैं जो डायरेक्टली रिंग से अटैच होते हैं, तो वहां पर ये एक और आ जाता है जिसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे उसमें कार्बोएल्डिहाइड लिखते थे एल्डिहाइड में, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एक दो और करना चाहते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई कंपोनेंट्स दिया है एरोमेटिक में, यहाँ पर COH है, ये आइडेंटिफाई हो गया कि मोनोकार्बोक्सिलिक है। मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लग गया या क्लोरो ग्रुप लग गया, कोई भी लग गया, ठीक है, कोई भी लग गया, तो यहाँ पर जो भी कंडीशन में आएगी, जैसे इस कंडीशन में अगर 3 पे है तो 3 है, 2 पे है तो 2 है। अब जैसे यहाँ से जहां से अटैच हो तो 1 2 3 4, तो जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन को हम लिखेंगे। जैसे 4 में क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये बेंजोइक था, इसमें 4 में क्या जुड़ गया, नाइट्रो, ये नाइट्रो हो गया। अब बेंजोइक एसिड है तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा, बेंजोइक एसिड। ओके, ओके। एंड सेकंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आपके लैब में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो जर्नल है 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट्स ऑन द कार्बन चेन एटम्स, इट इज कॉल्ड द डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल में उसी तरह आप सेट कर लीजिएगा नेम में, पहला जैसे आपका हो गया COOH। ठीक है, अब देखिए यही है COOH, इसमें 2 COOH आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। जर्नल नेम में इसका नाम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, आप जानते होंगे, बहुत यूज करें इसका। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड, क्या बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। अब इसका जो वायु एसिड आप लिखते हैं, जैसे उसमें आपने एल्केन में ई हटा दिया था और ओइक एसिड कर दिया था, तो उसकी जगह पर यहाँ पर एल्केन में कितने कार्बन दिखाई दे रहा है, 1 2, तो ये क्या है, एथेन हो जाएगा। एथेन, क्योंकि 2 कार्बोक्सिलिक है तो 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे। एथेन, एथेन से ई रिप्लेस हो जाएगा और डाइओइक एसिड ऐड हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो एथेन डाइओइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी में, आईयूपीएसी ये कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए 2 कार्बन एटम है तो एथेन तो होगा ही होगा, एथेन ई हटा के डाइओइक एसिड। अब यहाँ पर बेटा ध्यान से एक बात और देखना है, यहाँ पर ई नहीं रिप्लेस करेंगे क्योंकि इसमें डी आ रहा है। ठीक है, जब ई के बाद वावेल आता है तो जैसे ये था तो आई ई ओ यू ऐसा आता है, यहाँ डी आ रहा है, तो डी आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर ई रिप्लेस नहीं होगा। एथेन पूरा लिख देंगे हम, पूरा एथेन और डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत दे देता है, इसमें बैक में ई रिप्लेस कर देता है, तो ई यहाँ पर रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि ई के बाद डी आ रहा है। ठीक है, उसमें ई के बाद क्या आ रहा था, ओ आ रहा था, ए ई ओ आई वाई सब आते हैं होंगे, तो सभी यहाँ पर एक रिप्लेस होता है। अब इसके बाद ई के बाद डी आ रहा है, यहाँ रिप्लेस नहीं होगा। ठीक है, दूसरा कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है CH2, यहीं से लग जाता है COOH। देखिए CH2 COH का होल्ड ट्वाइस। ठीक है, सक्सेनिक एसिड आपने देखा होगा, इसका जनरल नेम सक्सेनिक एसिड बहुत कम, सक्सेनिक एसिड ये। ठीक है, सक्सेनिक एसिड। अब ये क्या है, मेथ है कि प्रो, 3 कार्बन है तो क्या होगा, प्रो, तो प्रोपेन डाइओइक एसिड, एकदम सिंपल है, प्रोपेन, प्रोपेन ई नहीं रिप्लेस होगा, डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड।
ओके, इसमें COH CH2, ये CH2 3 बार लग जाता है फिर COH हो जाता है। ग्लूटैरिक COH है तो टू कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो डाई कार्बोक्सिलिक होगा। ग्लूटैरिक एसिड इसको बोलते हैं जनरल नेम में, ग्लूटैरिक एसिड, ग्लूटैरिक एसिड, ठीक है। ग्लूटैरिक एसिड है 3 CH2 कंटेन, चाहे आप CH2 3 बार लिख सकते हैं या ब्रैकेट में लगा देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो कोई यानी 5 कार्बन एटम वाला है तो पेंटेन डाइओइक एसिड, 5 है तो पेंट हो जाएगा, पेंटेन, पेंटेन डाइओइक एसिड, यस। मेलोनिक होता है, मेलोनिक, ये सक्सेनिक में 4 कार्बन एटम हो जाता है, इसको ऐसे लिख लीजिए, मेलोनिक में 3 हो जाता है, इसमें 4, सक्सेनिक में 4 कार्बन एटम होता है, CH2, यहाँ भी CH2, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो ये सक्सेनिक हो जाएगा, अब प्रोप की जगह पर यहाँ पर ब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये ब्यूटेन होता है पूरा, ब्यूटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा, ये सक्सेनिक होता है। मेलोनिक में 3 होता है, मेलोनिक में बता दे रहा हूँ आपको, मेलोनिक, ठीक है, मेलोनिक एसिड, तो मेलोनिक एसिड का स्ट्रक्चर जो मैं पहले बनाया था वही होगा, CH2 COOH, ये COOH, ये ठीक है, टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर इसका नाम प्रोपेन डाइओइक एसिड हो जाएगा, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ओके, ठीक है। 4 कार्बन अटैचमेंट्स है तो ये सक्सेनिक होगा, ये आपका मेलोनिक है, ये वाला, क्लियर है। अब एक लास्ट में एडिपिक एसिड बना लीजिए, यहाँ पर 4 कार्बन एटम हो जाएगा, COOH सिंगल बॉन्ड लगा के CH2 कर दीजिए, ब्रैकेट में होल 4 और फिर COOH, ठीक है। ग्लूकोज में बहुत अच्छा बनता है ये एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड बोलते हैं, एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड 6 कार्बन है, 2 ये कार्बोक्सिलिक और 4 कार्बन CH2 ग्रुप, एडिपिक एसिड सिंपल हो जाएगा, 6 कार्बन मतलब हेक्स, हेक्सेन होना चाहिए, हेक्सेन पूरा लिख दिया। अब डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ओके स्टूडेंट, और एग्जांपल्स आप अपने एनसीईआरटी बुक से देख लीजिएगा। ये एडिपिक एसिड है, 6 कार्बन अटैचमेंट है, बेटा अगर 6 कार्बन एटम अटैचमेंट्स है, ऐसे एटम्स में बना हुआ है, ऐसे कभी कभी स्ट्रक्चर अलग कर देता है, ये 1C3 2 4 1 2 3 और फिर यहाँ पर COH है, तो CH2 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 इसी का ये फॉर्म है, इसको होल 4 में कर देते हैं बस, ओके। कल इसका जितना भी स्ट्रक्चर होगा बहुत अच्छे से और आप सीखोगे तो आ जाएगा। एक दो एरोमेटिक वाला आप बना लीजिए, एरोमेटिक वाला तो वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर इफ द कंपोनेंट्स आर द 2 कार्बोक्सिलिक अटैचमेंट्स ऑफ द बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड 1 कार्बोक्सिलिक या 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ठीक है। इफ द 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन द एरोमेटिक रिंग, तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें जोड़ेंगे, पहले ये बेंजीन है, इसका आईयूपीएसी लिख देंगे बेंजीन, ओके। स्टेबलाइजेशन में होता है बेंजीन 1 2 3 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 4 1 4 डाई, 1 4 में क्या लिख रहा हुआ डाई, अब कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिख देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके स्टूडेंट्स।